In my previous lecture of angle and its measurement, I explained what is the meaning of directed angles, then what are the different types of angles, what are the different system to measure angle, that is a degree and radian system. So today I am going to explain the next topic, that is arc length and area of a sector. हमारा आज का टॉपिक है for a sector of a circle how to find the length of arc and its area. There are only two formulas. Okay, बस दो फॉर्मूले प्रिपेयर करने, then the problems are very very simple. तो पहले फॉर्मूले देखते हैं. How to find the length of arc and area of a sector of a circle with center O. This is the circle with center O. So if this circle is cut by a chord AB, if this circle is cut by chord AB, then what is the meaning of OA? What is the meaning of OA? Radius of a circle. What is the meaning of OB? This is also radius of a circle, and this is called arc AB or BA. So center is O, A to B, it is arc. This is the subtended angle theta. So A to B, this is the length of arc. What is the meaning of sector? So this portion, this one is called as sector of a circle. This portion is called as sector of a circle. Sector of a circle. So my aim is to find the area of this sector and to find the length AB. Length AB. Length AB of a arc that is denoted by S. What is S? Length of arc of a sector of a circle. What is OA? R, radius of sector or radius of circle. Again, this OB is also R. OA is radius, OB is radius, AB is the length of arc of a sector of a circle. So there are only two formulas. First formula, what is the length of arc? So first formula is S is equal to R into theta, where theta is in radian. Where this theta is in radian. So what is the meaning of this S? This S is called length of arc AB. Length of arc. Okay. What is the meaning of R? R is the radius. Okay. So this R, this is called radius. And theta is the subtended angle. This angle, which is in radian. So what is theta? Theta is the subtended angle that is in radian. Okay, so this is the first formula. S is equal to R into theta. अगर मुझे ये S निकालना है, so इसका आंसर है प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इनटू सबटेंडेड एंगल. Only the important part is this theta is in radian, not in degree. This is the first formula. Second formula is area of a sector. Second formula is about the area of a sector. So what is the formula for area? Area A is equal to 1 by 2 r square theta. Again theta is in radian. Again the meaning are same. A is the area of a sector. What is R? R is the radius of sector. What is theta? Theta is the subtended angle. So this is the formula to find area of sector, and this is the formula to find the length of arc. S is the length of arc of a sector of a circle. S is the length of arc of a sector of a circle. तो बस दो फॉर्मूले यूज करके हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. ठीक है, चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. First problem is the radius of a circle is 9 centimeter. Radius of circle is 9 centimeter. Find the length of an arc of this circle. So question is to find S. R is given, which cuts off a chord of length equal to length of radius. This circle cuts off chord of length. So AB is the chord. What is AB? AB is the chord.
दिस ए बी, इसको कॉर्ड बोलते हैं. सो विच कट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस. तो क्या बताया यहां पे, ये जो कॉर्ड ए बी है उसकी लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ओ ए. एंड देन व्हाट इज गिवन, गिवन इज द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. क्वेश्चन इज टू फाइंड, पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल. तो आपको ये निकालना है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल. ओके, सो तो चलो फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं फॉर दिस प्रॉब्लम. सो दिस इज डायग्राम. Radius of a circle is 9. Find the length of an arc of this sector of a circle which cuts off a chord of length equal to length of radius. तो यहां पे सेंटर है सर्कल का, यहां पे सेंटर है, तो रेडियस इज इक्वल टू कॉर्ड ए बी. तो रेडियस इज इक्वल टू कॉर्ड ए बी. तो आपको मालूम है ये होता है कॉर्ड ए बी एंड दिस इज आर्क ए बी एंड दिस इज रेडियस. तो इन्होंने क्या बताया मालूम है, ये जो रेडियस है, रेडियस ओ ए दैट इज आर, रेडियस ओ बी दिस इज ऑल्सो आर, रेडियस ओ ए इज ऑल्सो आर. सो दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस. उन्होंने बताया विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस. तो ये जो कॉर्ड ए बी है तो उसकी लेंथ क्या है, ये जो कॉर्ड ए बी है इसकी भी लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी, उन्होंने बताया दैट इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस. देन क्वेश्चन is to find the length of a arc of a sector of a circle. तो आपको पूछा है कि ये निकालो लेंथ ऑफ आर्क. सो दिस इज द आर्क ए बी. तो ये आर्क है और ये कॉर्ड है, बराबर. लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल. देन क्वेश्चन इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी. तो हमको फॉर्मूला मालूम है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है. थीटा इज दिस एंगल. तो रेडियस तो उन्होंने दिया है. व्हाट इज द गिवन डेटा फॉर दिस प्रॉब्लम. सो दिस आर इज गिवन, गिवन डेटा इज रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9, आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क. तो पूछा क्या है, फाइंड एस, आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस. तो आपको ये पूछा है एस, फॉर्मूला एस का आर इंटू थीटा. हाउ टू फाइंड दिस एस. तो S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, बराबर. तो इससे S मिलेगा लेंथ ऑफ आर्क. तो रेडियस 9 है, थीटा निकालना है. तो एक बार थीटा मिल गया, प्रॉब्लम खत्म. हाउ टू फाइंड थीटा. उन्होंने बताया लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस. तो ये भी ए बी इज इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी. तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल. उन्होंने बताया कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस. ओके, ओ ए ओ बी. तो ओ ए इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी. ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. एंड वी नो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर सेम एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर सेम, बराबर ना. तो ये तीनों एंगल ये भी क्या होंगे, सेम होंगे. व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, 180 डिवाइड बाय 3 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 60. तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये जो थीटा है जो हमको चाहिए तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री. ए बी बी ओ ए आर इक्वल, इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ऑल द थ्री एंगल्स मस्ट बी सेम, 60 60 60, बराबर ना. तो थीटा मिल गया मुझे निकालना था लेंथ ऑफ आर्क ए बी, आर इंटू थीटा. आर इज गिवन, थीटा मैंने निकाला 60 डिग्री. सो आंसर इज, सो व्हाट इज एस, एस इज इक्वल टू आर. आर कितना है, 9. यहाँ पे थीटा रेडियन में होता है. यहाँ पे जो मैंने थीटा निकाला वो डिग्री में है, ये थीटा डिग्री में है, बराबर ना. लेकिन मुझे रेडियन में चाहिए. ये जो थीटा है ये डिग्री में, मुझे निकालना है रेडियन में, बिकॉज यहाँ पे रेडियन है. तो बताओ हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, कोई भी प्रॉब्लम डिग्री में कन्वर्ट करना है, कोई भी एंगल डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाई पाई से. और अगर एंगल रेडियन में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. तो यहाँ पे ये डिग्री है, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज फॉर्मूला में जो थीटा है दैट इज इन रेडियन. तो बताओ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, दिस इज रिक्वायर्ड. चलो सिंप्लीफाई करो, यही आंसर है.
3 इंटू पाई। लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ है, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर ही होगा। क्वेश्चन था फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, देयरफॉर आंसर इज लेंथ ऑफ आर्क AB is equal to 3 pi centimeter. Okay, so this is the problem. उन्होंने दिया था कि कॉड ए बी इज इक्वल टू रेडियस, बराबर ना, तो ये आर्क ए बी है, ये कॉड ए बी है, तो ए बी इक्वल टू बी ओ इक्वल टू ओ ए, इट बिकम्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर सेम, 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 60 डिग्री, 60 60 60 60 मिल गया। रेडियस उन्होंने बताया 9, फॉर्मूला था एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, थीटा रेडियन में चाहिए तो डिग्री में दिया था, तो डिग्री का रेडियन करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, put r equal to 9 centimeters, simplify, you are getting the answer 3 pi centimeter. So length of arc AB is equal to 3 pi centimeter. Pi की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, this is the answer. Okay, so this is the first problem. चलो second problem देखते हैं। Second problem, two arcs of same length subtend angles of 60 degree 75 degree at the center of two circle. What is the ratio of radii of two circle? दो आर्क है, दो सर्कल के, both the arc subtend different angle at the center. एक आर्क का थीटा दिया है 60, दूसरे का थीटा दिया है 75 डिग्री, बराबर ना। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द टू सर्कल। ओके, टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर ना। तो ऐसे दो आर्क है, दोनों की लेंथ सेम है, तो बताओ फॉर्मूला इज फर्स्ट वन, फर्स्ट आर्क S1 इज इक्वल टू R1 इंटू थीटा 1, और दूसरा होगा S2 इज इक्वल टू R2 इंटू थीटा 2। टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दिस इज गिवन, तो ये दो आर्क है, तो व्हाट इज गिवन डेटा, S1 इज इक्वल टू S2, बराबर, S1 is equal to S2. This is given. Two arc of same length. S is the length of a arc. Subtend an angle of 60 degree, 75 degree at the center of two circle. Theta 1 is 60, theta 2 is 75. What is the ratio of radii of two circle? आपको निकालना है R1 by R2, बराबर, आपको निकालना है R1 by R2, तो ठीक है, मुझे निकालना है R1 by R2। S1 इक्वल टू S2 है, तो अगर S1 इक्वल टू S2 है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि राइट हैंड साइड भी सेम है। उन्होंने बोला था टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, सो S1 इक्वल टू S2, तो इफ S1 इक्वल टू S2 देयरफॉर आई कैन राइट राइट हैंड साइड इज आल्सो सेम, R2 थीटा 2, बराबर। देन एट व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द टू सर्कल, रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है, तो यहां पे मैं लूंगा R1, चलो R2 को यहां पे भेज दो, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में था, यहां पे डिवीजन में आ जाएगा R2, तो थीटा 2 वहां पे रहेगा, यहां पे R1 इंटू थीटा 1 था, मल्टीप्लाई, यहां पे डिवाइड होगा थीटा 1। R1 by R2, what is the ratio of radii of the two circle? One suffix for the first circle, first arc, two suffix for the second circle, second arc. 60 डिग्री दैट इज द सबटेंडेड एंगल थीटा फॉर द फर्स्ट वन, तो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, रिमेंबर दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। पुट द वैल्यू, व्हाट इज थीटा 2, व्हाट इज थीटा 2, सो थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर ना। अरे हमको रेशियो निकालना है, अभी ये डिग्री में है दोनों, तो इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 होगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो पाई बाय 180 होगा, पाई बाय 180 गेट कैंसिल, तो ये करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियी, सो आंसर इज फाइव बाय 4 R1 by R2. What is the ratio of their radii? So answer is, आपको पूछा था what is the ratio of radii of the two circle. So ratio of radii of two circle is, what is answer, 5:4.
टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मुझे मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा, फर्स्ट आर्क सेकेंड आर्क, टू आर्क ऑफ सेम लेंथ तो S1 इक्वल टू S2 होगा। सबटेन एंगल ऑफ 60 एंड 75, 60 डिग्री थीटा 1, 75 डिग्री थीटा 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द टू सर्कल, तो इफ S1 इक्वल टू S2 होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो मैं राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकता हूं, R1 theta 1 equal to R2 theta 2. Transfer this theta 1 on the right hand side. So R1 by R2 equal to theta 2 by theta 1. 75 by 60. Simplify karo 5 by 4. Ratio of radii of the two circle is 5:4. Okay. So this is the second type. Next type dekhte hain abhi. Next problem. OAB is a sector of a circle having center at O and radius is 12 centimeter. If measure of angle AOB 45 degree, find the difference between area of a sector OAB. Find the difference between area of a sector OAB and triangle OAB. सेक्टर का एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, दैट इज द आंसर. स्केच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम. Sketch is important for this problem. Triangle OAB and angle is 45 degree. O angle. Sketch is important. Center O. This is called sector OAB. और दूसरा कौन सा है? ट्रायंगल OAB. दिस इज ट्रायंगल OAB. बराबर. सेक्टर OAB एंड ट्रायंगल OAB. तो ये सेक्टर है OA और यहां पे B. बराबर. दिस इज द सेक्टर OAB एंड दिस वन इज द ट्रायंगल OAB. ये ट्रायंगल का एरिया है, ये ट्रायंगल हो गया. दिस इज ट्रायंगल OAB. क्वेश्चन इज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्रायंगल OAB. तो सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, तो ये निकालना है हमको. क्वेश्चन इज टू फाइंड दिस वन. तो सेक्टर का एरिया निकालो OAB, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, तो ये एरिया निकालना है. ओके. तो पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, बाद में ट्रायंगल का एरिया. व्हाट इज द गिवन डेटा? मेजर ऑफ एंगल AOB. सो दिस एंगल इज गिवन 45 डिग्री, तो थीटा दिया है 45 डिग्री. दिस इज थीटा. ओके. OAB is a sector of a circle having center at O. Radius is 12. This is radius 12 centimeter. This is also radius 12 centimeter. Measure of angle AOB 45. Find the difference between area of a sector and triangle OAB. What is the area of a sector OAB? Half R square theta. तो R भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल सकते हैं. बराबर ना? half R square theta. R is known, theta is known. But the problem is to find the area of a triangle OAB. तो ट्रायंगल OAB का एरिया मुझे निकालना है. ट्रायंगल OAB का एरिया मुझे निकालना है. बराबर ना? तो क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल OAB का एरिया निकालना है मुझे. ठीक है. तो ये 45 डिग्री है. तो OAB, तो OA हो गया उसका बेस. तो हाइट क्या होती है? ये जो पॉइंट है B, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं. यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां पे. तो इसको नाम देते हैं OAB. चलो नाम देते हैं कुछ, तो इसको C. बराबर ना? दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है. बराबर ना? तो ये भी 90 है, ये भी 90 है. तो पहले हमको मालूम था कि दिस एंगल इज 45 डिग्री. अब ये कितना है? दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि B से मैंने OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो आप लोग बताओ ये कितना होगा? इन ट्रायंगल OBC, दिस एंगल OCB is 90 degree. Angle COB is 45. So in a triangle, sum of the three angle is 180 degree. तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? डेफिनेटली ये भी 45 होगा. बराबर ना?
अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 होगा। हमने क्या किया, फ्रॉम बी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पे, ओ ए पे, बराबर ना, तो ये 90 हो गया। दिस इज 45 गिवन, ये 90 है, 45 है, व्हाट इज द सम ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सो 45 90 180 से माइनस करो, तो ये कितना होगा, 45। मुझे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी ओ ए और ओ ए बी। फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो हाइट बीसी निकालनी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी, बराबर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो ये फॉर्मूला है। तो बताओ बेस कौन सा है, ओ ए, हाइट इज बीसी। बताओ बीसी कैसे निकालेंगे, हाइट इज बीसी, ये हाइट निकालनी है बीसी, बेस तो मालूम है, बराबर ना। तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था 10 में। नेक्स्ट चैप्टर डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, तो डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीओ sin 45 इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे निकालना है हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, बराबर ना। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, बताओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ओ सी बी, बताओ व्हाट इज साइन 45 डिग्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी साइन 45 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी। अरे ये बीसी तो निकालना है, यही तो हाइट है ना, बीसी यानी यही तो निकालना है मुझे हाइट। एंड व्हाट इज ओ बी, रेडियस। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी, what is sin 45, opposite side upon hypotenuse, opposite side is BC divided by hypotenuse is 90 के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज इज OB 12। अरे मुझे हाइट निकालनी थी, व्हाट इज H, चलो 12 को यहां पे भेज दो, 12 इंटू साइन 45 डिग्री, तो H कितना आ गया, 12 इंटू साइन 45, व्हाट इज साइन 45, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, 1/√2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 6 डिवाइड बाय √2, H इज इक्वल टू, फिर इस 2 को कैसे लिखेंगे, √2 इंटू 6 डिवाइड बाय √2, ये कैंसिल हो गया, तो मैं लिख सकता हूं 6√2, मिल गया हाइट। हाइट इज दिस वन, 6√2, बराबर आ गया समझ में, H इज 6√2। sin 45 इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, H इक्वल टू 12 sin 45, sin 45 is 1/√2, 12 लिख सकते हैं 2 into 6, what is 2, √2 into 6 divided by √2 get cancel, H is 6√2, that is the height। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मुझे निकालना था, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी, थोड़ी सा आंसर हाफ बेस इंटू हाइट। बताओ बेस ओ ए बी का बेस कौन सा है, ओ ए, दैट इज 12, और हाइट तो अभी निकाली मैंने 6√2। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज रेडियस, हाइट तो अभी निकाली मैंने यहां पे। सिंप्लीफाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 36√2, बराबर ना, 36√2, यहां पे ये दिया है सेंटीमीटर में, तो एरिया होगा स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो और सेंटीमीटर स्क्वायर, बोथ द यूनिट आर करेक्ट। ये मिल गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओएबी। उन्होंने पूछा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड ट्रायंगल, डिफरेंस निकालना है एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालते हैं ओएबी, एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी, ये वाला बाहर वाला ये, बराबर ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला एरिया का, हमने देखा था हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा रेडियन, हाफ
आर स्क्वायर ये रेडियस है इंटू थीटा रेडियन, थीटा कौन सा है 45 डिग्री, थीटा कौन सा है 45, आर कितना है 12, सो हाफ आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, थीटा रेडियन में। यहां पे सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या है 45, बट दिस इज इन डिग्री, मुझे रेडियन में चाहिए, तो मुझे रेडियन में चाहिए, थीटा था डिग्री में 45 डिग्री, मुझे रेडियन में चाहिए। कोई भी एंगल अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, डिग्री में करना है तो 180 बाय पाई, रेडियन में करना है तो पाई बाय 180। सो थीटा था 45 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से तो मिल जाएगा रेडियन। चलो सिंप्लीफाई करो इसको, 1/2 न्यूमरेटर इज 12 into 45 पाई डिवाइडेड बाय 180, सिंप्लीफाई करते हैं 12 स्क्वायर, 2 into 9 18 पाई, 12 स्क्वायर, थीटा डिग्री में था, रेडियन के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, 12 यानी 12 12 45 पाई डिवाइड बाय 180, सो सिंप्लीफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12/2 6 आ गया, 180 बाय 6 30, देन दिस इज बराबर है ना, बराबर है, ओके दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, 18 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर OAB, अगेन यूनिट इज आइदर स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, दिस इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्या पूछा था आपको, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड ट्राइंगल, ये आंसर निकालना है, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड ट्राइंगल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर वो तो बड़ा होगा, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर यहां पे लूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये पूछा था आपको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ अ सेक्टर, दिस इज 18 पाई माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 36√2, दिस इज द आंसर। या आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, व्हाट इज कॉमन 18, व्हाट इज रिमेनिंग पाई माइनस, अगेन द unit is centimeter square and this is the answer, this is the answer। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो दिस इज द आंसर। OAB, O is the center of a circle, तो OAB ये सेक्टर है, OAB ट्राइंगल है। क्या दिया है उन्होंने, रेडियस O है, रेडियस OB सेम, ये एंगल दिया है सेंटर का 45 डिग्री, तो मैंने क्या किया, OAB जो ट्राइंगल था उसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या होती है, फ्रॉम अपोजिट कॉर्नर ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये 45 हो जाएगा। बेस मालूम है, मुझे हाइट निकालनी है, साइन 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 45 इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो h इज इक्वल टू 12 साइन 45, साइन 45 1/√2, 12 को मैंने लिखा 2 into 6 √2 गेट कैंसल, आंसर इज 6√2। अरे हाइट मिल गई, बेस मालूम है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल OAB, हाफ बेस इंटू हाइट, व्हाट इज बेस, radius, what is height 6√2, so this one is 6 into 6 36√2 centimeter square। What is area of a triangle, area of a triangle is this one। What is area of a sector, half r square theta, r square theta, theta must be in radian, radius is 12, 12 into 12, theta 45 डिग्री, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, बस सिंप्लीफाई करो, अभी सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस आंसर। क्वेश्चन था find the difference between area of sector and area of a triangle, area of a sector minus area of a triangle, simplification answer is 18 pi minus 2√2 centimeter square और square centimeter, ओके। चलो और एक टाइप देखते हैं,
द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओके, सो थीटा तो मालूम नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली लेते हैं थीटा कोई भी। ओ ए बी, दिस इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, दिस इज द सेंटर, बराबर ना। तो ओ ए क्या होगा, रेडियस, ओ बी इज द रेडियस, एंड व्हाट इज एस बी, दिस इज द लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज दिस एस बी, इट इज द लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और उसके लिए हम लोग नोटेशन कौन सा यूज करते हैं, एस, और ये एंगल होता है थीटा, जो अभी मुझे मालूम नहीं कितना है, बराबर ना। तो ये हो गया सेक्टर ऑफ ए सर्कल ओ ए बी, ओ ए इज रेडियस, ओ बी इज रेडियस, ए बी एस लेंथ ऑफ ए आर्क, एंड थीटा इज द सबटेंडेड एंगल। चलो डेटा, व्हाट इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया, क्या ये 25 पाई, बताओ ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी ये एरिया होगा। ये स्क्वायर एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है तो ये एरिया होगा। दिस इज एरिया डेफिनेटली, 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया होगा। ईच 20 सेंटीमीटर, तो ईच 20 सेंटीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर। बच्चे उल्टा करते हैं, कभी कभी इसको एरिया बोलते हैं, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। सिंपल थिंग, पेरीमीटर यानी लेंथ, तो लेंथ तो सेंटीमीटर में होगी, तो ये पेरीमीटर है, और यहां पे यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये एरिया होगा। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। एरिया होता है स्क्वायर सेंटीमीटर में, पेरीमीटर होता है सेंटीमीटर में, तो ये पेरीमीटर है और वो एरिया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। मुझे थीटा चाहिए, मुझे आर चाहिए, बराबर ना। मुझे रेडियस चाहिए और मुझे थीटा चाहिए, थीटा भी मालूम नहीं, रेडियस भी मालूम नहीं, दोनों हमको निकालने हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ रेडियस निकालने के लिए, ये तो एरिया ऑफ अ सेक्टर है, ये फॉर्मूला किसका है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, जो हमको निकालना है, बराबर ना। तो ये फॉर्मूला एरिया ऑफ अ सेक्टर का है। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो ये P क्या है, इट इज द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, इट इज द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, बराबर ना। ये पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर, दिस इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों का, क्या लिखा है यहां पे, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 20, ये तो क्लियर हो गया, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 20, ऑफ एरिया 25, तो ये एरिया पेरीमीटर का नहीं है, एरिया ऑफ अ सर्कल है, क्योंकि आपको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो ये एरिया किसका होगा, सर्कल का। तो ये एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, अगर ये एरिया ऑफ अ सर्कल है तो बताओ मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन, सो इट इज 25 पाई, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, पाई गेट कैंसल, सो 25 आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर कितना आएगा, +-5। रेडियस कभी निगेटिव आ सकती है, बिल्कुल नहीं, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मुझे एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है, रेडियस मिल गई, थीटा मिल गया तो प्रॉब्लम खत्म, अगर थीटा मिल गया तो प्रॉब्लम खत्म। हाउ टू फाइंड थीटा, तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दिया है,
तो ये पैरामीटर यूज करके हम लोग थीटा निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है रे? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? स्क्वायर के चारों साइड है, उसकी लेंथ है, उसका एडिशन, जो भी बाउंड्री है उसकी एडिशन करो, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। पेंटागन है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है इट इज अ सम ऑफ अ लेंथ ऑफ अ बाउंड्री, बराबर ना? ये पेरीमीटर होता है। तो बताओ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी? तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, इट इज अ पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, बताओ, पेरीमीटर ऑफ एनी ज्योमेट्री इज सम ऑफ द बाउंड्री, जो भी साइड है आर के उसकी सम ले लो। तो सम क्या होगी? लेंथ ओ ए प्लस लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी ओ, ये होगा पेरीमीटर। बट पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज गिवन, तो यहां पे मैं 20 सेंटीमीटर पुट कर सकता हूं। बताओ लेंथ ओ ए क्या होगा? रेडियस। लेंथ ए बी क्या होगी? एस, बराबर। और लेंथ बी ओ क्या होगा? अगेन आर। तो क्या मिल गया मुझे? 20 इज इक्वल टू आर प्लस आर, 2r प्लस एस। लेकिन मैंने यहां पे आर निकाला था ना 5, तो मैं आर पुट कर सकता हूं। सो 20 इज इक्वल टू आर कितना आ गया? 5। सो 5 इंटू 2 10 प्लस एस, बराबर ना? देयरफॉर व्हाट इज एस? आर कितना निकाला था? 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 2 10, एस इक्वल टू 20 माइनस 10, तो कितना आ गया? सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्या निकाला मैंने? लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल निकाला। लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल। अरे मुझे तो थीटा निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क? एस इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो इस फॉर्मूला से हम थीटा निकाल सकते हैं। एस मुझे मालूम है, बराबर ना? एस मुझे मालूम है, तो मैं क्या करूंगा अभी? एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, बराबर ना? एक बार स्केच देख लो, मुझे स्केच इरेज करनी है, बराबर ना? मुझे स्केच इरेज करनी है। यहां पे स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, ज्यादा स्पेस चाहिए। ये समझ में आ गई आपको? अभी यहां से क्या करेंगे? एस इक्वल टू आर इंटू थीटा। दिस इज एस, दिस इज आर, थीटा मिल जाएगा। थीटा यहां पे पुट करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये था लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर? तो S इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू थीटा। मुझे थीटा निकालना है, बिकॉज S मालूम है, R मालूम है। व्हाट इज S? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज रेडियस? 5 सेंटीमीटर। अरे मिल गया ना मुझे? थीटा इज इन रेडियन, 10 डिवाइड बाय 5, 2 रेडियन। 2 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन, बराबर। क्या पूछा था? पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला था हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा रेडियन। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर। आर यहां पे निकाला था रेडियस, 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5। व्हाट इज थीटा इन रेडियन? 2। मुझे रेडियन में चाहिए, यहां पे रेडियन है, ये भी रेडियन है। 2 2 गेट कैंसल। व्हाट इज आंसर? 5 इंटू 5 25। एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। आंसर, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से बताता हूं प्रॉब्लम। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये क्या है? स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये एरिया होगा। ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये पेरीमीटर होगा। तो ये पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर है और ये एरिया ऑफ अ सर्कल है। ओके, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दैट इज गिवन 25 पाई। पाई पाई गेट कैंसल, आर स्क्वायर, आर इज प्लस माइनस 5। रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5।
व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, जो पेरीमीटर था ओ ए बी, तो व्हाट इज पेरीमीटर, ओ ए प्लस आर्क ए बी प्लस बी ओ, लेंथ ओ ए, लेंथ ए बी, बी ओ, अरे ओ ए एंड बी ओ इट इज द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बट लेंथ ए बी इज एस, आर प्लस आर 2r, what is the radius given, 5 into 2 10, so what is the length of a arc of a sector, 20 minus 10 10, क्या निकाला मैंने, length of a arc of a sector of a circle is 10. What is the formula to find the length of a arc of a sector of a circle, r into theta, s यहां से निकाला, रेडियस तो पहले ही निकाला था, थीटा मिल गया मुझे रेडियन में डायरेक्टली। क्वेश्चन था टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा, r is 5, theta is 2 radian, simplify, what is the answer, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो अलग अलग टाइप के मैंने 4 टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए बेस्ड ऑन द टॉपिक आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। ओके, तो हार्डली देर आर 2 formulas only to find the length of a arc of a sector of a circle, s equal to r into theta and area of a sector is equal to half r square theta। बस 2 फॉर्मूले, उसके ऊपर मैंने 4 टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। और इस लेक्चर में या इस टॉपिक में एवरी टाइम मैं सभी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। पहले पूरी थ्योरी कंसेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा और सभी टाइप का एक एक प्रॉब्लम लूंगा। देन ओनली इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेस लेक्चर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक। कभी सीटी या जेडब्ल्यू में आ सकते हैं। जो क्लॉक होता है सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, ऐसे पूछते हैं कि टाइम हो गया 5:45, बराबर ना, 5:45, कुछ भी पूछेंगे, 10:10, 20:11, then what is the angle between hour hand and minute hand? So my next lecture is on problems, all the concepts of problem related to clock. Okay, so this is for the today's lecture. Thank you.